In this question, they are saying a truck start from rest. So let's say this is a truck and it start from rest. That means its initial velocity is nothing but zero. Okay. Rolls down a hill with constant acceleration. So it is rolling down over a hill. They are saying it travels a distance of how much? 400 meter. In 20 seconds, the time period जो भी था, it was nothing but 20 seconds. Now they are asking us to find its acceleration. Also they are saying find the force acting on it. And hint provide किया है like for the mass of something 7 tons. ठीक है. So hint is also given 1 ton is equals to nothing but 1000 kg. Okay. So I think all the given values are clear. Chalo, let's try to solve. So the very first step while solving any numerical is to write given. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग given देख लेते what are the given values we have. So the very first thing we know it's nothing but the initial velocity 0 meter per second. Second thing जो हमको पता है it's nothing but 20 second time period. Displacement दिया है that is 400 meter. Mass is provided as how much? 7 tons, where hint is also given like 1 ton is equals to like 1000 kg. So mass is given as how much? 7 tons. So as per the hint, you can multiply 7 into 1000. Can I say mass is nothing but this is equals to how much? 7000 kg, right? And now they have asked you acceleration, okay? And second thing they are asking you force. So how are you going to solve? चलो देखते हैं. सेकेंड वाला तो बहुत सिंपल है. फोर्स जो है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. सो अगर आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है तो आप वो सिंपली इधर पुट करके क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो. सो हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन? वी कैन गो विथ काइनेमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है, आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है. एज लाइक आई कैन थिंक हमें सेकेंड इक्वेशन के साथ जाना चाहिए. दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So far whatever clarity we have is that we are supposed to go with s is equals to ut plus half at square. Okay, so with the help of this we'll try to solve. Chalo solve karte. Here we go. So the very first thing we'll go with this equation to find the acceleration. Can I say s is equals to nothing but ut plus half at square, right? तो s जो है वो मेरा 400 मीटर है. डू यू गाइज नो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. आप इसको जो भी टाइम से मल्टीप्लाई करोगे वो ज़ीरो हो जाएगा. सो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया. व्हाट इज लेफ्ट? हाफ. एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको. एंड टाइम इज गिवन एज हाउ मच? 20. तो 20 का स्क्वायर करोगे आप, इट विल कम आउट एज हाउ मच? 400. सो यहाँ पे हमारे पास कितना है? 400. समवेयर ओवर हियर वी हैव हाफ. ये a है. 20 का स्क्वायर इज नथिंग बट 400. यू गाइज नो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अगर इक्वल है तो कैंसिल आउट कर सकते हो. फ्रॉम दिस यू कैन कम टू नो कि ये जो 2 है ये सामने आएगा और ये एक्सेलरेशन आपका कुछ इधर होगा, राइट? सो यू कैन से 2 इज इक्वल्स टू ए. देयरफॉर आप अपना फाइनल आंसर कंक्लूड कर सकते हो. देयरफॉर acceleration is nothing but 2 meter per second square, right? So you can give your answer in such a manner. ठीक है, one step is done. Now moving up with the next, they have asked you acceleration as well as force. ठीक है, तो अब force कैसे find करना है? Force is nothing but mass into acceleration. You guys know mass, it's nothing but 7000 kg. ठीक है, so mass हमारा कितना है? 7000 kg. आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय वॉट एवर द गिवन एक्सेलरेशन यू हैव. सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 2 है ना. यू गाइज नो ना सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन. 7 टू ज़ा कितना होता है बच्चा? येस, वेरी गुड, इट्स नथिंग बट 14. और आगे हमारे पास कितने जीरोज आ गए? 3 जीरोज आ गए. सो यू कैन गिव योर आंसर एज 14,000 न्यूटन. ठीक है,
आप अपने आंसर को कैसे दे सकते हो, 14,000 न्यूटन। नाउ कुछ लोग इसको 14 किलो न्यूटन भी दे देंगे। ओके, सिंस 3 जीरो है तो 3 जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, किलो। सो समवन विल बी ऑल्सो गिविंग दिस एज 14 किलो न्यूटन। या फिर जो स्टैंडर्ड वे है वो ये है कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, जस्ट अ मोमेंट। सो यू कैन राइट दिस एज व्हाट, 14 किलो न्यूटन। और एक चीज, कैन आई राइट दिस एज 14 into 1000, यानी कि 10 raised to power 3 न्यूटन। बट पता है स्टैंडर्ड वे क्या होता है आंसर लिखने का, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक डिजिट के बाद डेसिमल हो। एंड यू कैन सी दिस इज 14, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अगर मुझे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यानी कि मुझे डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट करना है, एक पॉइंट शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो जो भी आपका पावर होगा उसमें कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1.4 इंटू 10 raised to power 4 न्यूटन। सो इट डिपेंड्स लाइक जो भी आपके स्कूल्स है या जो भी आपकी बुक्स है उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर। ठीक है, ये भी हम आंसर को इस फॉर्म में भी दे सकते, and also we can give your answer in such a manner. So I hope solution is clear to you all. If you guys have any kind of doubt, so yes, you can post in comment section, we'll try to answer. Thank you.